Praise the Lord. Today's Bible reading is being taken from the book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Life in God's service. So then, my brothers, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him, and is perfect. This is the word of the God. So welcome to the Pratha Niketan Sunday morning service, and I bring greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And as you all know that we are right now going through and we are at the last leg or the last phase of the Bible study series that we have been studying for the past 7 weeks. And the name of the Bible study is Every Word. ये बात आप लोग जानते हैं. और अगर आपने पिछले 6 संदेशों को नहीं सुना है और आप सुनना चाहते हैं तो YouTube पर मेरा चैनल है जस्टिन मसीह के नाम से, वहां पर आप जाएंगे, आपको वो सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे. सो यू कैन गो चेक आउट the older sermons, the part 1 to part 6 sermons on my YouTube channel. Go check it online. और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप वही कमेंट सेक्शन में आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दीजिए, and I promise I will send you the notes so that you can study the word deeply and keep that entire notes and the video as your own Bible study, and I'm sure God is going to bless you. So let us enter into this last leg or the last teaching session of the Every Word series. और आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है God's Word and My Mind. वेरी इंपॉर्टेंट. परमेश्वर का वचन और मेरा मस्तिष्क या मेरे विचार या मेरा मन. भाग 7 है ये, जो कि अंतिम भाग है, और आप पिछले के 6 भागों को YouTube के ऊपर जाकर के देख सकते हैं और उन सारी बातों को सुन सकते हैं और सीख सकते हैं. God's Word and My Mind. परमेश्वर का वचन और मेरा मन, मेरा मस्तिष्क या मेरे विचार, मेरे ख्याल. Now, I don't remember, my dear people, but I am sure I must have said this somewhere, or you must have heard me saying this somewhere, that you are your mind. Yes, you are hearing it right. You are your mind. You are what you think. You are, your personality is what your thought process is made of. आपका व्यक्तित्व आपके विचारों से बनता है. आपका व्यक्तित्व आपके विचारों की जो संरचना आपके मस्तिष्क में है उससे आप बनते हैं. और इसीलिए पौलुस रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में कहता है कि संसार के सदृश न बनो. ओके, बी नॉट कंफॉर्म्ड टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड. कॉन्फर्मेशन मीन्स लुकिंग अलाइक. कॉन्फर्मेशन मीन्स लुकिंग अलाइक. संसार के सदृश्य न बनो, अर्थात संसार जैसे न दिखो, संसार जैसी सोच मत रखो, संसार जैसे शब्द मत रखो, संसार जैसा व्यवहार मत रखो. पौलुस ये कह रहा है संसार के सदृश्य न बनो, परंतु बट तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए. तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए. बी नॉट conformed to the patterns of the world, but be transformed into the likeness of Jesus Christ. तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए. और मैं आपको विश्वासियों बताना चाहता हूं, अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, दूसरों के जीवनों के अनुभव से बताना चाहता हूं, सिवाय परमेश्वर के वचन के आपके विचारों को और कोई बदल नहीं सकता. Nobody, no literature, no creativity, no experience has the power to transform your thoughts, to transform your minds, except Jesus Christ, except His Word. So, मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, मैं आज की सुबह इस संदेश के आरंभ में ही आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन ये है that if you want any positive transformation in your life, if you want your thoughts to move from darkness into light, if you want your thoughts to move from death into life, and if you want your thoughts to move
into a position close to Jesus. It is only God's word that can do that for you. परमेश्वर का वचन ही आपके मन मस्तिष्क में, ख्यालों में, विचारों में, एहसासों में उस परिवर्तन को ला सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं. And that is why today morning we want to learn how God's word is affecting your mind. इसीलिए आज की सुबह हम सीखना चाहते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को, हमारे मन को प्रभावित करता है, प्रभावित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है. आज हम बात करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे मन मस्तिष्क को जागृत करता है, रिवाइव करता है, किस तरह से वो हमारे मन को शिफा देता है. God's word has the power to heal your mind. लिखा है कलाम में, तुम्हारे मन में एक असाध्य रोग लगा हुआ है. असाध्य रोग, एक ऐसा रोग जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जो लाइलाज है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके मन को शिफा दे सकता है. God's word can heal your mind and God's word can enlighten your mind. वो आपके मन मस्तिष्क को प्रकाशित कर सकता है. अंधकार है, खुदा का कलाम आपके मन को प्रकाशित कर सकता है. God's word can enlighten your mind, bring in light into your mind. Where there is darkness, God's word can bring light. और हम यही देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं किस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे मन, विचारों को, मस्तिष्क को प्रकाशित करेगा. We all, my dear people, struggle in our thoughts. मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, हम सब अपने विचारों और ख्यालों के साथ संघर्ष करते हैं. और हमारे सबसे गंभीर अनुभव, हमारे सबसे गहरे डर, हमारे सारे संघर्ष, हमारी सारी यादें, अच्छी यादें, बुरी यादें, किसी का कहा हुआ अच्छा शब्द, किसी का कहा हुआ बुरा शब्द, ये सारी बातें हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारे विचारों में. इसीलिए यदि हम किसी भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं, यदि हम किसी भी तरह की सकारात्मक परिवर्तन को देखना चाहते हैं, तो वो परिवर्तन तब आएगा जब हमारे मन मस्तिष्क में परिवर्तन आए. और परमेश्वर के वचन के अलावा उस परिवर्तन को कोई नहीं ला सकता. Okay? Now there is a old song that we used to sing when we were children attending Sunday school. It is called "Great Change Since I Was Born." Great change since I was born. Things I used to think, I think them no more. There is a great change since I was born. जब से मैं पुनः पैदा हुआ, नया जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह में मेरा जन्म हो गया, एक बड़ा परिवर्तन आया. जो मैं सोचता था अब मैं नहीं सोचता, मेरे अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ गया. इसीलिए परमेश्वर हमारे ख्यालों को, विचारों को मन मस्तिष्क में आकर के वो मुलाकात कर रहा है. गॉड वॉन्ट्स टू कम एंड मीट अस इन आवर थॉट्स. गॉड वॉन्ट्स टू कम एंड मीट अस इन आवर हार्ट. गॉड वॉन्ट्स टू कम एंड मीट अस इन आवर माइंड, ताकि हमारे मन मस्तिष्क को वो शांति प्रदान करे, वो आराम मिल सके, वो इत्मीनान मिल सके, वो सुकून मिल सके. याद रखिएगा, परमेश्वर की आवाज उसके लोगों के लिए सुकून का कारण होती है. God's voice for his people, for his followers, for his disciples brings peace, tranquility. ये परमेश्वर की आवाज है. लिखा है कलाम में, My sheep hear my voice. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं. मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती. यदि आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं, आपको यीशु की आवाज सुनाई देगी. And they follow me, Jesus says, and I lead them into green pastures and beside still waters. भजन 23 में इस बात को पढ़ते हैं. मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, यीशु कहता है, वो मेरा अनुसरण करती है, मैं उनकी अगुवाई करता हूं, मैं उनको शीतल जल के पास ले जाता हूं, मैं उनको हरी हरी घास पर बैठाता हूं, जहां पर उनको आराम मिलता है. जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, उस आवाज से उनको सुकून, आराम, इत्मीनान मिलता है. याद रखिएगा, यह सुकून और आराम हमारे शरीर में नहीं है, हमारे मस्तिष्क में. अगर आपके विचार शांत हैं, आपकी देह शांत होगी. मैं इस बात को अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं आपका भी यह अनुभव रहा होगा कि आपका शरीर उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है जैसा कि आपका मस्तिष्क सोचता है. योर बॉडी रिएक्ट्स इन द मैनर योर माइंड थिंक्स. My dear people, listen to this very, very carefully. This can be a eureka moment for each of you. Your body reacts in the way your mind thinks. So if your mind is thinking right, your body will act right. If your mind is corrupted,
your actions will be corrupted. If your mind thinks angry thoughts, your body will manifest anger. If your mind is full of confusion, your actions will manifest confusion. आपका मस्तिष्क जैसा सोचता है, आपकी देह उसी तरह की प्रतिक्रिया करती है. अगर आपके मस्तिष्क में संघर्ष है, आपके शरीर के द्वारा जो कार्य हैं उनमें संघर्ष दिखाई देगा. यदि आपके मस्तिष्क में क्रोध के विचार हैं, आपकी देह में उस क्रोध के कार्यों को हम देखने पाते हैं. इसीलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर आपके विचारों में आके आपसे मुलाकात करना चाहता हूं. गॉड वॉन्ट्स टू कम एंड मीट यू इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर थॉट्स, एंड ही वॉन्ट्स टू गिव यू पीस थ्रू हिज वर्ड. आपको शायद लगता होगा कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में है, आपने सब कुछ संभाल रखा है, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में है. लेकिन मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाता है कि जीवन के संघर्ष आप पर भारी पड़ रहे हैं. यू मे थिंक दैट यू हैव एवरीथिंग इन अंडर कंट्रोल, बट many times in life, in the twinkling of an eye, one phone call and everything goes out of control. One letter, everything goes out of control. One email, everything goes out of control. One conversation, and everything goes out of control. So you may think you have everything under your control, but my dear people, let me tell you, it is not in your control. You try to take your mind in your control, you are going to lose it. जितना ज्यादा आप अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करेंगे, आप उसको खो बैठेंगे. इसलिए जरूरी यह है कि आप अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को, अपने एहसासों को परमेश्वर को सौंप दीजिए. लेट गॉड कंट्रोल योर माइंड थ्रू हिज वर्ड. यू डोंट ट्राई टू डू इट. द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, यू गोइंग टू लूज इट, माय डियर पीपल. अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत काबिल सोचते हैं और उनको लगता है कि वो अपने विचारों को नियंत्रित करेंगे ताकि उनके एक्शंस नियंत्रित रहें. लेकिन एक समय आता है जब उनके विचार उनके कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए जीवन के सबसे बड़े युद्ध मन में, मस्तिष्क में, विचारों में लड़े जाते हैं. हमारे सबसे बड़े 3 जो शत्रु हैं वो है शैतान, शरीर और संसार. यू नो, आवर 3 biggest enemies, the 3 biggest enemies are the devil, our flesh, and the world. The devil, the opposing force, our flesh, the desires of the flesh, and the world, ye sansar. And Jesus wants you to be strong, courageous, and victorious even as you face these 3 enemies. And he wants you to win. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके मन मस्तिष्क स्वस्थ हो, मजबूत हो, शिफा प्राप्त हो, और उसका वायदा है कि वो आपको आपके मस्तिष्क में आराम प्रदान करेगा ताकि आप विजयी हो सके. दैट यू मे बी विक्टोरियस. लिखा है 2 कुरिन्थियों में कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है. तो जय के उत्सव में हम शरीर में नहीं, अपने मन, अपने विचारों में प्रवेश करते हैं. यू आर फर्स्ट विक्टोरियस इन योर माइंड, देन यू रिसीव विक्ट्री इन योर बॉडी. कहते हैं ना, डोंट लूज द बैटल इन योर माइंड, फाइट इट फर्स्ट, देन लूज इट इन योर बॉडी. जो लोग विचारों में युद्ध हार जाते हैं वो शरीर में युद्ध कभी जीत ही नहीं सकते. इसीलिए जय के उत्सव में जब यीशु हमको लेके चलता है तो वो जय के उत्सव हमारे विचारों का जय में जय प्राप्त करना है. देयर इज विक्ट्री इन आवर थॉट्स दैट गॉड हैज प्रॉमिस्ड टू अस. फॉर दिस ही हैज प्रॉमिस्ड टू गिव यू हिज माइंड. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि वो हमें जय के उत्सव में ले चलना चाहता है. लेकिन हम जय के उत्सव में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? उसने वायदा किया है कि वो अपना मस्तिष्क हमको प्रदान करेगा. गॉड विल गिव अस हिज माइंड. 1 Corinthians chapter 2 and verse 16 says this. Who has known the mind of the Lord so as to instruct him? Let me read this for you once again. Who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. मैं जल्दी से आपके लिए हिंदी में इस हिस्से को पढ़ दूं. 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 16वां पद. यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है. ना आज की सुबह मैं आपके साथ 2 क्षेत्रों के बारे में बात करना चाहता हूं. दिस मॉर्निंग आई वांट टू फोकस ऑन 2 ways of how God gives us the mind of Christ.
किस तरह से परमेश्वर हमें मसीह का मन देता है या मसीह की विचार देता है। पहली बात, हिज वर्ड हेल्प्स अस टू गेट ओवर द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है ताकि हम अपनी पुरानी सोच से छुटकारा पा सकें, पुरानी सोच से छुटकारा पा सकें। दूसरी बात, हिज वर्ड हेल्प्स अस टू थिंक द वे क्राइस्ट थिंक्स। उसका वचन हमारी सहायता करता है ताकि हम मसीह यीशु की तरह सोच सकें, अबाउट हु ही वॉज, अबाउट हिज पर्पसेस इन लाइफ एंड वेयर हिज एलिजेंस लेज। हम सोच सकें कि यीशु कौन था, उसके जीवन को उद्देश्य क्या था और वो किसके प्रति समर्पित और वफादार था। लेट्स गो अहेड। नंबर 1, हिज वर्ड हेल्प्स अस टू पुट अवे द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है ताकि हम अपनी पुरानी सोच से छुटकारा पा सकें, पुरानी सोच से हम छुटकारा पा सकें। 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, गॉड्स वर्ड लीड्स अस अवे फ्रॉम द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड टू द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमें संसार की सदृशता से दूर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की ओर ले जाता है। संसार की सदृशता से दूर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की ओर वो हमें ले जाता है। गॉड्स वर्ड विल टेक अस अवे फ्रॉम द वर्ल्ड टुवर्ड्स द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। और यही बात हम लोगों ने रोमियो के 12वें अध्याय के 2 पद में पढ़ी। परंतु तुम संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। बुद्धि का नयापन परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। वो नयापन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही ला सकता है। इसीलिए बुद्धि का नया हो जाना परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है ना। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि ये बहुत मार्के की बात है, बहुत खास बात है। लिसन टू दिस केयरफुली। योर माइंड will not be able to receive from God as long as you don't stop it from receiving from the world. Listen to this again. Your mind will not be able to receive from God until you stop it from receiving from the world. आपका मन, आपका मस्तिष्क परमेश्वर के विचारों को तब तक नहीं प्राप्त कर पाएगा जब तक कि आप संसार के विचारों को अपने मस्तिष्क में आने से रोक न दें। So what I'm basically saying is that you have to choose between what kind of thoughts you want to entertain, whether you want to receive thoughts from God through his word or you want to receive thoughts from the world. और परमेश्वर के वचन का कार्य जो है या उसका प्रभाव जो है एक बहुत सिंपल सी थ्योरी पर ऑपरेट करता है और उस थ्योरी का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि आप परमेश्वर के वचन के विचारों को और उसकी बातों को अपने मस्तिष्क में आने देंगे, वही आपके जीवन से दिखाई देगा। यदि आप संसारिकता और बुराई और कुटिलता और लड़ाई और शक और हर तरह के उस तरह के ख्यालों विचारों को अपने मस्तिष्क में आने देंगे, तो आपका शरीर उसी तरह की प्रतिक्रिया देगा। एंड दैट इज व्हाई इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टीचिंग सेशन आई सेड यू आर योर माइंड। आप आपके विचार हैं। किस तरह के विचारों को आप एंटरटेन करना चाहते हैं? सो गॉड्स वर्ड विल हेल्प यू टू स्टॉप रिसीविंग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड स्टार्ट रिसीविंग फ्रॉम गॉड। गॉड्स वर्ड विल डू दैट फॉर you know, taking you away from the conformity of the world into the likeness of Jesus Christ. God's word will do that for you. दूसरी बात, God's word gives us a new attitude of mind resulting in a new self that is like Jesus. परमेश्वर का वचन हमारे मन को नया करता है ताकि हमारा नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिखने लगे। हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराने विचार, पुराने ख्याल संसार के जैसे थे। और 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा जो यीशु में है वो नई सृष्टि है। अर्थात पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ अब नया हो गया। पुराने विचार बीत जाएंगे, नए विचार आ जाएंगे, हम यीशु की तरह दिखने लगेंगे। यू नो, वी विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक जीसस, स्टार्ट थिंकिंग लाइक जीसस, स्टार्ट स्पीकिंग लाइक जीसस, स्टार्ट हैविंग एन एटीट्यूड लाइक दैट ऑफ जीसस क्राइस्ट। God's word will enable you to do that, to put back your old self and to put in front your new self that resembles Jesus Christ. God's word will do that. My dear people, do you want to see a transformation in your life or not?
क्या आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखना चाहते हैं? यदि हां, तो संसार और संसारिकता से अपने आप को बचाना आपका चुनाव होगा। मैं इस बात को फिर से दोहरा दूं, नॉट एंटरटेनिंग थॉट्स फ्रॉम द वर्ल्ड इज ए चॉइस that you have to make. God is not going to put per force his thoughts into your mind. He is going to let you choose between thoughts of the world and thoughts from God. You have to choose to receive thoughts from God. Good thoughts, godly thoughts, heavenly thoughts, positive thoughts, thoughts that will build people, encouraging, and rather than thinking like that of the world. So that's a choice that you have to make. Ephesians chapter 4 and verse 22, इफिसियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय और उसका 22वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहले अंग्रेजी में और उसके बाद फिर मैं उसको हिंदी भाषा में आपके पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, यू वर टॉट विथ रिगार्ड टू योर फॉर्मर वे ऑफ लाइफ टू पुट ऑफ योर ओल्ड सेल्फ विच इज बीइंग करप्टेड बाय इट्स डिसीटफुल डिजायर्स, टू बी मेड न्यू इन द एटीट्यूड ऑफ योर माइंड, टू बी मेड न्यू इन द एटीट्यूड्स ऑफ योर माइंड, टू पुट ऑन द न्यू सेल्फ created to be like God in true righteousness and holiness. हमारा नया मन हमें यीशु की तरह बना सकता है। 4:22 इफिसियों 4 और उसका 22 पद इस प्रकार से लिखा है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बन जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनना है। सो हारे हुए मनुष्य की संपूर्ण विजय इसी में प्राप्त होगी। देयर इन लाई ऑल द विक्ट्रीज ऑफ अ फॉलन मैन। वी आर कवर्ड इन द ओल्ड लाइज दैट हैज बीन टोल्ड टू अस। एक झूठ है जो हमसे कहा गया। आप कहेंगे हमसे कोई झूठ नहीं बोलता। नहीं, आपसे आप खुद झूठ बोलते हैं। यस, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे उतना झूठ बोले जितना आप खुद से बोलते हैं। यू लाई टू योर ओन सेल्फ, द वर्ल्ड लाइज टू यू, सेटन लाइज टू यू। गॉड्स वर्ड विल रिमूव ऑल दोज लाइज एंड ब्रिंग इन द न्यू ट्रूथ हुज नेम इज जीसस। आवर माइंड, डियर पीपल, इज द सेटन्स बैटलफील्ड। व्हाट ही कैन एंड कैनॉट कंट्रोल इज ऑल हियर इन द माइंड। हमारा मस्तिष्क जो है वो शैतान का युद्ध क्षेत्र है। वो हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित भी कर सकता है और हम अपने मस्तिष्क को उसके नियंत्रण से निकाल के परमेश्वर के नियंत्रण में हम दे सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों 6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, उसके में जलते हुए तीरों को बुझा सको। और लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, उद्धार की टोप, द हेलमेट ऑफ salvation, which is an armor of God. Now I am wondering, why is Paul comparing helmet to something that will give you salvation? Yes, because helmet will cover your head, symbolic of your mind. उद्धार का टोप जो आपके मस्तिष्क को, विचारों को नियंत्रित करेगा, उद्धार का टोप है। परमेश्वर के हथियार को बांध लीजिए, अर्थात परमेश्वर के हथियार से अपने मस्तिष्क को ढांक लीजिए ताकि शैतान आपके मस्तिष्क को, विचारों को अपने नियंत्रण में न करने पाए। यूजिंग गॉड्स वर्ड टू क्लेम मेंटल टेरिटरी बैक, वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने मन, मस्तिष्क, विचारों, ख्यालों पर फिर से अपना नियंत्रण कर सकें, प्रभुता कर सकें। और वो प्रभुता आपके लिए नहीं है। यू टेक इट बैक फ्रॉम द एनिमी एंड यू गिव इट टू जीसस। द लॉन्गर यू कीप योर माइंड इन योर कंट्रोल, द फास्टर एंड ईजियर यू विल लूज इट। जितनी जल्दी हो सके शैतान के नियंत्रण से अपने विचारों को निकाल करके अपने मस्तिष्क को यीशु को सौंप दीजिए। यूजिंग गॉड्स वर्ड टू फाइट डाउट एंड डिस्पेयर, परमेश्वर के वचन की सहायता से अपने शक और अपने अकेलेपन का सामना करना। पिछला पूरा जो संदेश था, अगर आप सुनना चाहते हैं, पार्ट 6 of this series was totally on how God's word will enable us to fight our doubts. हमारे शक का हम सामना कैसे करें। यूजिंग गॉड्स वर्ड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, परमेश्वर की वचन की सहायता से हम माफ करके भूलना सीख सके। यूजिंग गॉड्स वर्ड टू काउंटर द डेविल्स लाइज, शैतान के द्वारा कहे हुए झूठ का हम किस तरह से परमेश्वर के वचन की सहायता से सामना करें। यूजिंग गॉड्स वर्ड टू थिंक लाइक जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तरह हम कैसे सोच सकें, परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा। यूजिंग गॉड्स वर्ड टू हील फ्रॉम द पास्ट,
परमेश्वर के वचन की सहायता से किस तरह से हम अपने अतीत के दुष्प्रभाव से बच सकें। अतीत में हमें बहुत चोट लगी है जी, अतीत में हमें बहुत दुख हुआ है, अतीत में बहुत क्लेश हुआ है, अतीत में बहुत बुराई हमारे साथ की गई है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर है। अतीत को, अपने वर्तमान को नियंत्रित और बर्बाद करने मत दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट ruin your present. Learn to deal with your past. My dear people, listen carefully. These are God's word. Learn to deal with your past. अपने अतीत को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, परमेश्वर को उसे अपने अधीन में करने दीजिए। Number 3, God's word builds rail guards for our mind as we take every thought कैप्टिव। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है ताकि हम अपने हर विचार पर नियंत्रण रख सकें, परमेश्वर को उसको सौंप सकें। हमारे विचार हमारे अधीन ना हो, परंतु परमेश्वर के अधीन हो और उसके अनुसार चले। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 8, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन with thanksgiving let your requests be made known to God. Verse 7, and the peace of God, yes, when you hand over everything in God's hands, that is when Paul says, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your minds. When you hand over your life reins into the hands of God, that is when the peace of God will come and control your heart and control your mind in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, जितनी बातें सत्य हैं, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. बहुत ही कमाल का पद है, मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 6 से 8 पद, और मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया, मैं चाहता हूं इसको हिंदी में सुन लीजिए पौलुस क्या कह रहा है। फिलिपियों 4, 6 से 8, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। 8वां पद, निदान, देयरफॉर, हे मेरे भाइयों सुनिए ध्यान से, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। कमांड, इट्स अ कमांड। पॉल सेज थिंक अबाउट दीज थिंग। इसका मतलब यह है यू विल हैव द चॉइस बिटवीन दीज थिंग्स ऑफ द वर्ड एंड द थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू चूज किस पर आप अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, किस पर विचार करना चाहते हैं, परमेश्वर की वचन की बातों पर या संसार पर। थिंकिंग इज अ चॉइस। My dear people, listen. Thinking is a choice. You think what you want to think. आप वही सोचेंगे जो आप सोचना चाहेंगे। कोई आपको जबरदस्ती सोचने पर मजबूर नहीं कर सकता। आप उतना ही सोचते हैं जितना आप सोचना चाहते हैं। इसीलिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर की वचन की बातों पर सोचो, न कि संसार और संसारिकता की बातों पर। Choose to think what is right. He is saying that these things mentioned above are what you must think of. So make the right choice about what you would like to think. Don't give the reins of your heart and mind into the hands of the world, but give it into the hands of Jesus. And you tell him, Lord, give me the right thoughts. मुझे नहीं पता हम लोग परमेश्वर से कभी हमने सही विचार मांगे हैं कि नहीं। हम लोग परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं जी। You know, we tell God, God give us this, give us that, good food, good गाड़ी, good घर, good बच्चे, good कपड़े, good नौकरी, good पैसा, good bank balance. We want many good things from God, yes, but have you prayed, Lord, give us good thoughts? प्रभु हमें अच्छे विचार दीजिएगा, क्योंकि आपका विचार आपके व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है। 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought
कैप्टिव टू ओबे क्राइस्ट। अपने हर एक विचार को अपने नियंत्रण में कर लीजिए ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी हो सके। चौथी बात, गॉड्स वर्ड मेक्स अस डिसिप्लिन्ड, करेजियस एंड पर्पस ड्रिवन। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है ताकि हम अनुशासित हो सके। डोंट लेट योर माइंड्स, हार्ट्स, थॉट्स बिकम इनडिसिप्लिन्ड। अनियंत्रित मत होने दीजिए, अनुशासित रखिए। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। सो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है कि हम अनुशासित हो सके। वो हमें हियाव देता है, हमारे जीवन को उचित उद्देश्य प्रदान करता है, और मानव जीवन का कुल उद्देश्य है प्रेम करना, यीशु से प्रेम करना, यीशु के समान प्रेम करना, लविंग जीसस एंड लविंग लाइक जीसस। एंड द लास्ट थिंग, हिज वर्ड हेल्प्स अस टू थिंक द वे क्राइस्ट थिंक्स। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह सोच सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लर्निंग टू थिंक लाइक जीसस। वी वांट टू लर्न टू लव लाइक जीसस, वेरी गुड, बट वी आल्सो नीड टू लर्न टू थिंक लाइक जीसस। यीशु की तरह प्रेम करना जरूरी है, लेकिन यीशु की तरह सोचना भी जरूरी है। यदि हम प्रभु यीशु की तरह सोच नहीं पाएंगे, हम यीशु की तरह कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। That's very important. 3 बातें हैं अबाउट हु ही इज। ओके, व्हाट डज क्राइस्ट थिंक अबाउट हु ही इज। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में क्या सोचता है। यूहन्ना 10:29-30, जॉन चैप्टर 10 वर्स 29 and 30, माय फादर हु हैज गिवन देम टू मी इज ग्रेटर देन ऑल। सो व्हाट इज जीसस सेइंग अबाउट हिमसेल्फ? दैट ही इज द सन ऑफ गॉड। यू नीड टू थिंक अबाउट जीसस एज ही इज द सन ऑफ गॉड। गॉड्स वर्ड विल टीच यू टू थिंक लाइक अबाउट जीसस as he is the son of God. दूसरी बात, what is the purpose of Jesus' life? यीशु के जीवन का उद्देश्य क्या है? मरकुस 10 और उसका 45, Mark 10:45, for even the son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. मनुष्य का पुत्र संसार में सेवा टहल कराने नहीं आया, परंतु इसलिए आया ताकि वो बहुतों की छुड़ौती का कारण बन सके। You need to learn to think about Jesus as he is the savior of the world. वो संसार का उद्धार करता है। Okay? Ephesians chapter 5 and verse 25. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Husband, love your wife as Christ loved the church. जिस तरह से यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? आगे पौलुस कहता है इफिसियों 5 में, उसने अपने आप को दे दिया, कुर्बान कर दिया, समर्पित कर दिया। जिस तरह से मसीह ने कलीसिया को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, पति उसी तरह से अपनी पत्नी से प्रेम करे। सो हस्बैंड्स, बी द प्रीस्ट दैट प्रेज फॉर योर वाइफ। हस्बैंड, बी द प्रीस्ट, बी द पास्टर, be the man of God who prays for your wife. पति अपनी अपनी पत्नी के लिए एक पासबान की तरह प्रार्थना कीजिए। Pray to God to strengthen your wife. पिता से प्रार्थना कीजिए अपनी पत्नी के लिए। And the last thing, what Jesus thinks about his allegiance. प्रभु यीशु मसीह अपने पूर्ण समर्पण, अपनी वफादारी के बारे में क्या सोचता है। John chapter 6 and verse 38, for I came down from heaven not to do mine own will but the will of him who sent me. यीशु कह रहा है, मैं संसार में इसलिए नहीं आया ताकि अपनी इच्छा पूरी करूं, परंतु उसकी इच्छा जिसने मुझे भेजा। So Jesus is saying he is completely and totally surrendered to God the Father. That is his allegiance. प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो पूर्ण तरह से अपने पिता के प्रति समर्पित है। Now what is your commitment, my dear people, this morning? आज की सुबह आपका समर्पण क्या है? Listen, our mind is God's sanctum, the throne room where the fight for the will is won. हमारा मस्तिष्क परमेश्वर का कार्य क्षेत्र है, वो पवित्र स्थान है जहां उसका सिंहासन है, जहां हमारी इच्छा को हासिल करने के लिए युद्ध होता है। There is a fight being fought in the mind for our will. Listen again. There is a fight being fought in the mind for our will. हमारी इच्छा के लिए हमारे मस्तिष्क में एक युद्ध होता है। संसार हमारी इच्छा पाना चाहता है कि हम संसार की इच्छा करने लगे।
यीशु मसीह भी हमारी इच्छा पाना चाहता है कि हम प्रभु यीशु की तरह दिखने की इच्छा रखने लगे। और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है हमारे मस्तिष्क में। हु डू यू वांट टू बी विक्टोरियस दिस मॉर्निंग? आज की सुबह आप किसको विजयी बनाना चाहते हैं? संसार को और यीशु को हराना चाहते हैं, या यीशु को विजयी बना करके संसार को पराजित करना चाहते हैं? द चॉइस माय डियर पीपल इज योर्स। चुनाव आपका है। लेट गॉड्स वर्ड रूल एंड कंट्रोल योर माइंड। काश कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर नियंत्रण कर सके। और अंतिम पद यशाया 26 और उसके 3, आइजाया चैप्टर 26 एंड वर्स 3 says this, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you। जो लोग परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हैं वो उनके विचारों को हियाव देता है, दृढ़ करता है। मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन आपके मन और आपके विचारों को नियंत्रित कर सके। May God's word enable you to take control, take charge, take reign over your mind. May God bless you. प्रभु आप सबकी सहायता करे, प्रभु आप पर अनुग्रह करे। काश की परमेश्वर की आशीषें, काश की परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हमेशा बनी रहे। आज की सुबह इस फेसबुक लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यदि आप इस लाइव सेशन को देख नहीं पाए हैं तो बाद में आपको हम लिंक भेज देंगे ताकि आप उसको देख सकते हैं। एंड प्लीज स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते